Human Geography Chapter First. Geography is a field study, an integrative, empirical, scientific and practical discipline. It studies each and every event on the surface of the earth over the time and space. Human geography studies the relationship between human and nature. एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, आनुभविक एवं व्यावहारिक है। मानव भूगोल भौतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंधी मानवीय घटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। प्रमुख भूगोलवेत्ताओं की कुछ परिभाषाएं। रेटजेल के अनुसार ह्यूमन ज्योग्राफी इज द synthetic study of relationship between human societies and earth surface by रेटजेल। इसमें रेटजेल ने सिंथेटिक स्टडी संश्लेषणात्मक अध्ययन पर महत्व दिया है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ह्यूमन ज्योग्राफी is the study of the changing relationship between the unresting man and the unstable earth by E.C. Sempill। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सेम्पिल। Conception resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of relations between the living beings which inhabit it by पॉल विडाल डी लाव्लास। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। पॉल विडाल डी लाव्लास। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। Human geography studies the interrelationship between the physical environment and socio-cultural environment created by man. Elements of physical environment are land, water, soil, climate, flora and fauna, etc. Elements of cultural environment are transport and communication, सेटलमेंट, क्रॉप्स एटसेट्रा। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। भौतिक भूगोल के तत्वों में भू आकृति, मृदाएँ, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति, विविध प्राणी जात एवं वनस्पति जात प्रमुख हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों में ग्रह,
गांव, नगर, सड़कें, रेल, उद्योग, खेत, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित की गई हैं। डिटर्मिनिज्म, निश्चयवाद, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स। Man interact with nature with the help of technology. It is not important that what he creates, but with what tools he used to create. Technology indicates the level of cultural development of the society. Understanding the nature help to create technology. Understanding of friction and heat help to discover fire. Understanding of DNA helps to eradicate diseases. Law of thermodynamics help to develop fast planes. Knowledge about nature is extremely important to develop technology, and technology loosens the shackles of environment on human being. The interaction between primitive society and strong forces of nature is called environmental determinism. Ratzel and Sempill were the supporters of this ideology of determinism. In determinism, humanization, naturalization of human occurs. Human adopt the lifestyle according to the natural environment. The tribal society follow the natural forces. They fulfill their needs from the surrounding environment. They worship the natural forces. They fear from the natural phenomena, and they totally depend on their surrounding environment for their needs. This is called determinism. The early stage of human men live according to the environment of their surroundings. निश्चयवाद तथा मानव का प्राकृतिकीकरण। निश्चयवाद वह विचारधारा है जिसमें मनुष्य प्रकृति के अनुरूप अपने को ढालता है। वह प्रकृति की शक्तियों से डरता था तथा अपनी आवश्यकताएं अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण से पूरी करता था। जैसे आदिम जनजाति समाज, मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों एवं तकनीक की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरण के लिए घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज की। इसी प्रकार डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्य के समझने से अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयान विकसित करने के लिए हम वायुगत के नियमों का प्रयोग करते हैं। प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। पॉसिबिलिज्म और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। With the development of technology, people understood the nature well. They moved from the state of necessity to state of possibility or freedom. Human activities created cultural landscape, so it is called as possibilism. Paul Vidal de la Blas, French School of Thought, support possibilism. संभववाद। संभववाद तथा प्रकृति का मानवीकरण। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक फलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा देश संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। इसी को ही संभववाद का नाम दिया गया है। इसने प्रकृति को अपने अनुरूप ढाल लिया है, अर्थात प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म और साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रिफिथ टेलर इन 1920 एन ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर। इट इज ए मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। द कॉन्सेप्ट shows that neither there is a situation of absolute necessity nor there is a condition of absolute freedom. Sustainable development is the main aim of neo-determinism. Maintains balance between development and nature. Example of nature as a traffic controller and man as a traveler incorporated in his concept. नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रतिपादित यह विचारधारा मध्यम मार्गी विचारधारा है। इसमें न तो मानव प्रकृति का दास है और न ही मानव प्रकृति का विजेता। यह संकल्पना दर्शाती है न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति पर्यावरणवादी निश्चयवाद है और न ही नितांत स्वतंत्रता संभववाद की दशा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नव निश्चयवाद की तुलना ट्रैफिक लाइट की तरह की गई है, जहां लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है। यदि नहीं रुकेंगे तो दुर्घटना हो सकती है। इसी तरह प्रकृति हमें संकेत देती है कि मनुष्य को किस सीमा तक प्रकृति को बदलना है। यदि वह प्राकृतिक नियमों की अनदेखी करेगा तब उसे विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के रूप में उसका परिणाम भुगतना होता है। अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल की विचारधाराएँ। वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट। इट कंसर्न विद सोशल वेल-बीइंग ऑफ द पीपल लाइक हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। कल्याणकारी या मानवतावादी विचारधारा। इस विचारधारा का संबंध
मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था, जिसमें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट कंसर्न विद कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation and social and gender inequality. They follow Marxist ideology. अमूलवादी विचारधारा। इस विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानताओं की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। Behavioral school of thought, giving importance to lived experience, perception of space by social category. व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संबंधों के दिक्काल बोध पर ज़्यादा जोर दिया गया।